ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਟਰਮਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਆਫ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। In accounting, a transaction is any monetary business event that impacts a business financial statements। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨੀ ਇਵੈਂਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਮੋਨੇਟਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। Business transactions impact both individuals or organizations which included in this transaction। जो ट्रांजैक्शन उस टाइम हो रही होंदी है बिजनेस नाल होंदी है, इकोनॉमिकली होंदी है तो वो दोहे धिरां नूं प्रभावित करती है। अर्थात बिजनेस नूं भी जो व्यापार कर रहा तो इंडिविजुअल जिस दे नाल वो ट्रांजैक्शन हो रही है। ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ एक अजिही आर्थिक घटना होंदी है। आर्थिक घटना अर्थात जो कि ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਿਕ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਜਰ ਇਨਕਲੂਡ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੇਲਸ ਟੂ ਕਸਟਮਰਸ, ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵਡ ਔਨ ਇਨਵਾਇਸਿਸ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਸਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਓਨਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਆਫ ਐਸੈਟਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਹੈ ਬਾਰਟਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵਸ ਐਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਊਟਫਲੋ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਐਸੈਟਸ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਜੋ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश ट्रांजैक्शन ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਸੂਲਣਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। An example of cash transaction is that you walking into a store. Suppose you walking into a store buying clothes and paying using a debit card, और तुसी debit card राही payment कर दिंदे हो, और debit card payment is the same as an immediate payment of cash as the amount gets instantly debited from your bank account। इसनूं कैश पेमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब तुसी डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हो तो नाल दी नाल तुहाडे बैंक अकाउंट दे विच उन्नी राशि डेबिट अर्थात निकल जाती है। उदाहरण मान लो तुसी किसी दुकान ते कपड़े खरीदण लई जांदे हो अते तुसी भुगतान डेबिट कार्ड राही करदे हो। किया गया भुगतान नकद या कैश भुगतान होवेगा क्योंकि ये तुहाडे बैंक खाते विचों उसे समय ही बनदी राशि नूं डेबिट कर देवेगा अर्थात निकाल देवेगा। कैश ट्रांजैक्शन देखो पेमेंट है, एम होंदा अपना परचेजिंग, आपां वस्तु खरीदनी है। मीडियम हो सकता है नोट्स, कॉइनस और डेबिट कार्ड हो सकता है इसका एक्सचेंज का। बेनीफिट की है दे इनेबल्स इमीडिएट नाल दी नाल ट्रांजैक्शनस हो जाती है, फास्टर दैन क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी तो एक की है फास्ट हैं। हुण कैश पेमेंट्स कंपेयरिंग द प्रोज एंड कॉन्स, की आपां नूं इसके लाभ हैं तो की इसदियां हानियां आपां वन बाय वन करते हैं। फस्ट लाभ ये है नो ट्रांजैक्शन चार्जिज आर इनवॉल्व। जदों किसी भी प्रकार की कैश ट्रांजैक्शन की जाती है तो उससे किसी भी प्रकार के एक्सट्रा चार्जिज नहीं लगते। दे प्रोटैक्ट योर आइडेंटिटी एंड प्रिवेंट प्राइवेसी ब्रीचिज, अर्थात की है तुहाडी आइडेंटिटी नूं छुपा के रखते हैं तो जो अपनी कानून की उलंघना करती है उस चीज़ को भी ये रोकते हैं। ऑन कैश रजिस्टर सिंपलीफाइज आ अकाउंटिंग प्रोसैस, जिहड़ा कैश रजिस्टर का काम है वो बिल्कुल सिंपल है। दे कैन एक्ट एज ए लास्ट रिजोर्ट एंड एमरजेंसी बैकअप, तो जेकर आप कैश के रूप में रखा होंगे तो अपने पास एमरजेंसी बैकअप रखा जा सकता है। इसके की नुकसान हैं, कैश पेमेंट्स नीड सिक्योरिटी। कैश पेमेंट जो तुसी रखनी है इस वास्ते तुहानूं सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए होएगी। यू कैन नॉट ऑलवेज कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, तुसी ज़्यादा मात्रा दे विच हर समय जो कैश है अपने नाल नहीं चक सकते। यू हैव नो डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शनस, इस प्रकार के ट्रांजैक्शनस है कोई रिकॉर्ड नहीं रहिंदा, जिस करके जिहड़ा एक्सपेंस नूं जो एक्सपेंस हो रहा खर्चा कित्ते हो रहा उसनूं कई बार सही ढंग नाल ट्रैक नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट ऑलवेज लिक्विड एनफ ड्यूरिंग एमरजेंसीज, कई बार एमरजेंसी के टाइम अपने कोल प्रॉपर मात्रा दे विच जिन्नी आपां नूं चाहीदी है कैश नहीं हुंदा। यू ऑलवेज नीड टू हैव इमीडिएट एक्सेस टू कैश विच इज़ नॉट फिजिबल। लार्ज कैश पेमेंट्स आर इनकनवीनियंट एंड अनसेफ, जे आप लार्ज कैश पेमेंट्स रखते हैं तो यह की ने इनकनवीनियंट अपने लिए असुविधा पैदा करदियां ते सुरक्षित भी नहीं हैं। नैक्सट है कि नकद के लैन देन के लाभ और हानियां, इस विच कोई लैन देन का खर्चा नहीं लगता, इस विच पहचान की सुरक्षा रहिंदी है तो कोई उलंघना नहीं होंदी जो गोपनीयता नियम हैं। यह आखिरी उपाय एमरजेंसी विच आपां बैकअप वजों रख सकते हाँ। इसदियां हानियां की ने, इनू सुरक्षा की लोड़ पैंदी है ज़्यादा। दूजा तो सेफ्टी की, इस विच तुहाडे कोल कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं हुंदा, इस करके तुसीं खर्चे नूं ट्रैक नहीं कर सकते। एमरजेंसी दौरान हमेशा काफ़ी नकद राशि नहीं होंदी तो नकद राशि की जिहड़ी तुहानूं तुरंत पहुँच करने की लोड़ होंदी है जो कि संभव नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नैक्सट पॉइंट है क्रेडिट ट्रांजैक्शनस। आपां हुण कीता कैश ट्रांजैक्शन, उसके ओपोजिट है क्रेडिट ट्रांजैक्शनस। Credit transaction in account can be explained as a transaction is happening at the same time but the money is paid on some future date। जो ट्रांजैक्शन है वो सेम टाइम पर हो रही है बट जो उसका बिल है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, विल बी पेड इन अ फ्यूचर डेट। दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेबिटर। इसके साथ क्या होता है, एक क्रेडिटर और डेबिटर अर्थात दुकानदार और खरीदार दोनों के विचकार क्या एक रिलेशन कायम हो जाता है। उधार लेन देन, इस किस्म के लेन देन विच खरीदार पार्टी द्वारा
प्रोडक्ट उपर बनता मुल इक्को दम देने की बजाय भविख विच देने का वादा किया जाता है, अर्थात जो पेमेंट है आने वाले समय में थोड़ी थोड़ी करके दे दी जाएगी। आम शब्दों में इस किस्म के लैन देन में नकद भुगतान नहीं किया जाता बल्कि उधार रूप में किया जाता है और गाहक द्वारा भविख विच राशि की अदायगी की जाती है। इस नाल खरीददार और वेचण वाले विचकार एक प्रकार का रिश्ता कायम हो जाता है, अर्थात उन्हों का लैन देन जोड़ा लंबे समय तक चलता है, इस करके उन्होंने बीच एक प्रकार का व्यापारक रिश्ता कायम हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल है थोक विक्रेता निम्रतावां तो उधार वस्तुआं प्राप्त करते हैं और भविख विच बनदी राशि का भुगतान करते हैं। मोस्टली की हुंदा है जो थोक विक्रेता होलसेलर्स ने, होलसेलर गैट्स गुड्स फ्रॉम मैਨੂਫੈਕਚਰਰ तो गुड प्राप्त करते हैं क्रेडिट ते विद सम क्रेडिट पीरीयड फॉर पेमेंट कि असी इन्ने समय तक तुहानूं इसकी पेमेंट कर देवांगे। वो पेमेंट डिपेंड करता है कि उन्होंने आपस में रिलेशन किस तरह के उस समय उधार का समा जो निश्चित किया जाता है, कोई महीने की ड्यू दिंदा, कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की, ये डिपेंड करता है उन्होंने रिलेशनस की। नैक्सट है एडवांटेजिस की हैं, आपां लाभ की ने। इट प्रमोट्स अ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की किसी संस्था की सेल्स नूं की है प्रमोट करता है, वधाउंदा है। इट इज़ ए कंटीन्यूअस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड्स, इस नाल जिहड़ा फंड है कंटीन्यूअस जो पैसा है कंटीन्यूअस आता रहता है तो सुविधाजनक भी इस नाल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। दिस सोर्स इज़ वेरी बेनीफिशियल इन केस व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इनक्रीज इट्स इन्वेंटरी लैवल, अर्थात जो अपना स्टॉक बढ़ाना चाहता है तो यह सोर्स उधार वाला सोर्स है एक तरह वो लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। इन ऑर्डर टू मीट एक्सपैक्टेड राइज इन सेल्स वॉल्यूम द नीयर फ्यूचर, जो उसको आस होंगी है कि आने वाले थोड़े जे समय भी जो कीमतों के विच तेजी आएगी तो उसको इन्वेंटरी को स्टॉक करने लई उसकी मदद करता है। इस तरह के फंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सोर्स दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये नाल की है जो थोड़े बिजनेस के एसेट्स हैं, बिजनेस के साधन है, पूंजी है, उससे किसी प्रकार का खर्चा नहीं ऐड होंदा। इहदे डिसएडवांटेजेस की ने, थ्रू दिस सोर्स ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी रेज, इस तरह के तरीके नाल सिर्फ एक लिमिट मात्रा विच, एक सीमित मात्रा विच ही आपां फंड का अरेंज कर सकते हाँ। एज कंपेयर टू द अदर सोर्सिस ऑफ फंड दिस सोर्स इज जनरली कोस्टली, इन्हां दी कुछ ना कुछ आपां नूं कोस्ट भी पैंदे, कोस्टली होंदे आ थोड़े जे। फर्म मे बी इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग ड्यू टू ईजीएबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ दिस, कई बार की होंदा कि फंड की ईजी अवेलिटी करके, ईजी फंड मिलन करके की होंदा है कि जिहड़ा बिजनेस है बड़े लैवल से शुरू कर लिता जाता है, ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा ही व्यापार हो जाता है जिस नाल कई बार आने वाले समय विच व्यापारी नूं ज़्यादा नुकसान उठाना पै सकता है। इसदियां लाभ ते हानियां आपां इंग्लिश कीते हुण पंजाबी च करदे हां। यह एक संगठन की विक्री नूं उत्साहित मतलब वधाउंदा है, उत्साहित का अर्थ हुंदा है वधाउणा। यह फंडां दा निरंतर अते सुविधाजनक स्रोत है, निरंतर मतलब लगातार, यह स्रोत उस स्थिति विच बहुत लाभदायक हुंदा है जदों कोई संगठन नेड़े दे भविख विच विक्री की मात्रा विच संभावित वाधे नूं पूरा करने लई वस्तु के स्टॉक विच वाधा करना चाहुंदा है, मतलब वस्तु के स्टॉक विच वाधा करना चाहता है तो उस स्थिति के विच यह बहुत हेल्पफुल होंदा है। इसका सब तो महत्वपूर्ण फायदा यह है कि कारोबार की जायदाद ते किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं बनता। इसकी हानियां ये ने कि सीमित मात्रा में ही आप फंड अरेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि यह महंगा होंदा, इससे कुछ ना कुछ कॉस्ट पैंदी है। इस नाल की है उपलब्ध लचकता के कारण ओवर व्यापार, ओवर मतलब आप वध मात्रा के शुरू कर लेने, कई बार स्टॉक उन्ना बिकता नहीं तो व्यापार में आने वाले समय में हानि भी उठानी पै सकती है। डिफरेंस बिटवीन कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शनस, हुण आपां 2 प्रकार के ट्रांजैक्शनस कर चुके हैं। फर्स्ट वन कैश ट्रांजैक्शन, सैकेंड वन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दोवां दे विचकार हुण डिफरेंस की है चलो करते हाँ। कैश ट्रांजैक्शन सैटल्ड इन कैश, ये नकदी रूप में हुंदा है, ये नकदी रूप में तो हुंदा है पर कुछ फ्यूचर डेट ते भविख की डेट ते उस समय नहीं हुंदा। सेम टाइम इमीडिएट सैटलमेंट, उस टाइम सैटलमेंट हो गई है जो है। सैटलमेंट एंड सबसीक्वेंट डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, मतलब इस दे विचकार समझौता मतलब कदों खत्म होएगा जदों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एप्लीकेबल टू बोथ कैश एंड मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मतलब कैश से भी लागू होंदा है तो उधार से भी लागू होंदा है।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਫਿਊਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਫॉर ट्रांजैक्शनस, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ट्रांजैक्शनस ਦੀਆਂ। देयर इज़ एन इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो, ਇਹਦਾ कैश फ्लो ਤੇ इंपैक्ट ਪੈਣਾ। देयर कैश फ्लो हैज़ नो इंपैक्ट, ਤੇ कैश फ्लो ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ इंपैक्ट नहीं पैंदा। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ, मतलब इसकी जो सैटलमेंट है नकद विच हुंदी है, कैश विच हुंदी है उधार लैन देन दी। ये सैटलमेंट नकद रूप विच तां हुंदी है पर भविख दी मिति दे विच आने वाले समय विच हुंदी है। इसकी तुरंत बंदोबस्त हो जाए, तुरंत सैटलमेंट हो जाती है। इसका निपटारा अगली जो तक लैन मिति तक, लैन की मिति तक इसका समझौता मतलब पेमेंट ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होंगी। अकाउंटिंग के नकद ते वपारक आधार दोवां ते लागू हुंदा है, सिर्फ सही आधार ते लागू हुंदा है, अर्थात जो रूल्स और रेगूलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पैंदा है। प्रति ट्रांजैक्शन सिंगल ते घट एंट्रियां हुंदियां ने दियां, प्रति ट्रांजैक्शन कई एंट्रियां हो सकदियां हन। नकदी के प्रवाह ते असर पैंदा है, ये तां नकदी के प्रवाह ते कोई असर नहीं पैंदा उधार लैन देन दा। नैक्सट पॉइंट है थर्ड ट्रांजैक्शन है बार्टर ट्रांजैक्शनस, तबादला लैन देन जो कि बिजनेस दे विच बहुत ही घट चलदी है। यह ज़्यादातर पहलां चलदी हुंदी सी। बार्टर ट्रांजैक्शन इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस। ਇਹਦਾ अर्थ है कि बार्टर ट्रांजैक्शन ਉਹ ट्रांजैक्शन है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो सबसक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे पिछली वीडियोज़ हैं उन्होंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा रही हाँ, तुसीं वो भी देख लेना तो पहला चैप्टर उस क्लीयर कर लेना। थैंक यू।